Hello everyone, now again welcome in वीडियो लेक्चर क्लास। पुनः आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है इस वीडियो लेक्चर क्लास में। आज जो टॉपिक का मैं बात करने जा रहा हूँ वह है क्रेडिट बेस्ड एवेल्युएशन अर्थात क्रेडिट आधारित मूल्यांकन। यह टॉपिक बीएड सेमेस्टर 2 के अंतर्गत पेपर 8 असेसमेंट फॉर लर्निंग में यूनिट 5 के अंतर्गत है। जैसा कि इसके पूर्व में सीसी यानी सतत एवं समग्र या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में विस्तार से मैं आप लोग से चर्चा किया। अब अगली कड़ी में क्रेडिट बेस्ड एवेल्युएशन की बात कर रहा हूँ। जब कहीं भी क्रेडिट बेस्ड एवेल्युएशन की बात होती है तो सर्वप्रथम हायर एजुकेशन की बात होती है। तो मैं हायर एजुकेशन की पहले बात चर्चा करूँ। यह व्यवस्था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा की गई है। ऑब्जेक्टिव दैट मीन्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूजीसी regarding the credit based evaluation is 100% clear. That means UGC has been focused only quality based education along with quality based teaching learning process in the classroom। अर्थात यूजीसी ने अपना उद्देश्य को स्पष्ट किया है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में गुणवत्ता आधारित मूल्यांकन भी हो और ग्रेडिंग सिस्टम की व्यवस्था इसमें स्थापित की गई है। जो ट्रेडिशनल प्रोसेस है यानी जो पारंपरिक तरीका जो है मूल्य के आधार पर उससे ग्रेडिंग को और अधिक उत्कृष्ट बनाया गया है। तो ये चीज़ें स्पष्ट है कि करिकुलम में कितने समय में कंप्लीट हो कैसे हो उसी को अलग अलग जो है वह क्रेडिट के रूप में बांटा गया है। तो चलिए मैं इसे और आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ। नाउ अगेन वेलकम टू वीडियो लेक्चर क्लास B.Ed semester 2 paper 8 assessment for learning। First I will describe in English credit based evaluation on the basis of particular topic, that is credit based evaluation. I have select 5 contents in the introductory part, that is first one is introduction, second one is university grant commission, that means view of university grant commission regarding credit based evaluation, higher educational institution, grading system, what is the meaning of grading system, and guidelines of grading system. Now number 1, introduction of credit based evaluation. Introduction. University Grant Commission, in University Grant Commission, that is, has initiated several measures to bring equity, efficiency and excellence in the higher education system of country. Now next one is the under the University Grant Commission view, the important measures taken to enhance academic standards and quality in higher education include innovation and improvements in the curriculum, teaching learning process, examination and evaluation system, besides governance and other matters. Next point, the UGC has formulated various regulations and guidelines from time to time to improve the higher education system and maintain minimum standards and quality across the higher educational institutions in India. Next point, the academic reforms recommended by the UGC in the recent past have led to overall improvement in the higher education system. However, due to lot of diversity in the system of
higher education, there are multiple approaches followed by universities towards examination, evaluation and grading system. Now, that is the view of University Grant Commission. Now, next one is higher educational institution. The higher educational institutions in India must have the flexibility and freedom in designing the examinations and evaluation methods that best fits the curriculum, syllabus and teaching learning methods. There is a need to devise a sensible system for awarding the grades based on the performance of students. Now, next point, in higher education institution, presently the performance of the students is reported using the conventional system of marks secured in the examinations or grades or both. Next point, the conversion from marks to later grades and the later grades used vary widely across the HEI, that is higher educational institutions in the country. Next point, this creates difficulty for the academia and the employers to understand and performance of the students graduating from different universities and colleges based on grades. Now, next one, grading system. The grading system is considered to be better than the conventional mark system and hence it has been followed in the top institutions in India and abroad. So, it is desirable to introduce uniform grading system. This will facilitate students' mobility across institutions within and across countries and also enable potential employers to assess the performance of students. Now, next one is guidelines of grading system. To bring in the desired uniformity in grading system and methods for computing the cumulative grade point average. My dear student, be care, CGPA, it is known as cumulative grade point average, based on the performance of students in the examinations. The UGC has formulated these guidelines. These guidelines shall apply to all undergraduate and postgraduate level degree, diploma and certificate programs under the credit system awarded by central, state deemed to be universities in India. Now, in this way, English version of the credit based evaluation has been finished. Now, अब मैं थोड़ा के इंट्रोडक्शन को हिंदी में थोड़ा बता दूं। क्रेडिट आधारित मूल्यांकन, सर्वप्रथम इस परिचय के अंतर्गत 4 मुख्य बातें हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का व्यू, उस शैक्षणिक संस्थान का व्यू, ग्रेडिंग प्रणाली और ग्रेडिंग प्रणाली के दिशा निर्देश। तो सर्वप्रथम परिचय के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत जो बातें हैं उसे मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश की उच्च शिक्षा प्रणाली में, यानी कह सकते हैं कि पूरे देश के अंतर्गत जो समता है या समानता जिसको कहते हैं, दक्षता और उत्कृष्टता लाने के लिए कई उपायों की शुरुआत की है। नेक्स्ट पॉइंट, उच्च शिक्षा में शैक्षणिक मानकों और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए किए गए महत्वपूर्ण उपायों में शासन और अन्य मामलों के अलावा पाठ्यक्रम और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, परीक्षा और मूल्यांकन प्रणालियों में नवाचार और सुधार शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट,
यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने समय समय पर उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार और भारत में उच्च शैक्षणिक संस्थानों में न्यूनतम मानकों और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए विभिन्न नियमों और दिशा निर्देश को तैयार किया है। हाल के दिनों में यूजीसी द्वारा सुझाए गए शैक्षणिक सुधारों में उच्च शिक्षा प्रणाली में समय समय पर सुधार भी देखा गया है। हालांकि उच्च शिक्षा की प्रणाली में बहुत अधिक विविधता होने के कारण परीक्षा, मूल्यांकन और ग्रेडिंग प्रणाली के लिए विश्वविद्यालय द्वारा कई दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं, जिससे कि कभी कभी कुछ समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। अब मैं नेक्स्ट व्यू है वो बात करूं उच्च शैक्षणिक संस्थान HEI। भारत में उच्च शैक्षणिक संस्थानों में परीक्षा और मूल्यांकन के तरीकों को अलग अलग तरीके से कभी कभी कुछ हद तक डिजाइन किया जाता है, इसका प्रारूप तैयार किया जाता है, जिसमें लचीलापन दिखाई पड़ता है, लेकिन उसमें स्वतंत्रता होनी चाहिए। जो पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण विधियां में सबसे उपयुक्त हो, छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर ग्रेड प्रदान करने के लिए एक अच्छी व्यवस्था या अच्छी प्रणाली तैयार करने की आवश्यकता है, जिससे कि एक फलदायी प्रक्रिया उत्पन्न हो सके। वर्तमान में परीक्षा या ग्रेड या दोनों में सुरक्षित या उपयुक्त अंकों की पारंपरिक प्रणाली का उपयोग करके छात्रों के प्रदर्शन की सूचना दी जाती है, लेकिन देश भर में जितने भी उच्च शिक्षण संस्थान या शैक्षणिक संस्थान हैं, अंकों से लेकर अक्षर ग्रेड या उपयोग किए गए अक्षर ग्रेड में व्यापक रूप से भिन्नताएं पाई जाती हैं। उस भिन्नताओं के कारण शैक्षणिक संस्थानों और नियोक्ताओं यानी जो एम्प्लॉयर जिन्हें नौकरी मिलती है जहाँ पर के लिए ग्रेड के आधार पर विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में स्नातक करने वाले छात्रों के प्रदर्शन को समझने या अनुमान लगाने के साथ साथ इंटरव्यू या अंतर्वीक्षा में भी कठिनाई उत्पन्न होती है। अब मैं बात करता हूँ ग्रेडिंग प्रणाली की। ग्रेडिंग प्रणाली को पारंपरिक अंक प्रणाली से बेहतर माना जाता है और इसलिए भारत और विदेशों में शीर्ष संस्थानों में इसका पालन किया गया है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक समान ग्रेडिंग प्रणाली शुरू करना वांछनीय है। यह छात्रों के भीतर और पूरे देश में संस्थानों में गतिशीलता की सुविधा प्रदान करेगा, साथ ही साथ संभावित क्षेत्रों से जुड़े हुए छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने में भी सक्षम हो पाएगा। नंबर 5 जो बात है वह लास्ट में मैं ग्रेडिंग प्रणाली की दिशा निर्देश की थोड़ा सा बात कर दूं कि कैसे जो है उसको किस आधार पर पालन करना है। एकरूपता लाने के लिए परीक्षाओं में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर संचयी ग्रेड बिंदु औसत यानी CGPA की गणना के लिए ग्रेडिंग प्रणाली और विभिन्न विधियों को यूजीसी ने इस दिशा निर्देश में या इसके आधार पर दिशा निर्देश तैयार किए हैं। यह दिशा निर्देश भारत में केंद्रीय, राज्य और डीम्ड विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए जाने वाले क्रेडिट प्रणाली के तहत सभी स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र कार्यक्रमों पर लागू होंगे। इस प्रकार से ये जो व्यवस्थाएं दिशा निर्देश की हैं, जिसकी कि विस्तार से ग्रेडिंग प्रणाली के अंतर्गत मेंशन किए गए हैं, चर्चा की गई हैं, जो विश्वविद्यालय को दिए जाते हैं, स्पष्ट होता है कि ये व्यवस्थाएं अगर पारंपरिक तरीके से को छोड़कर अगर क्रेडिट आधारित काम किया जाए तो ज़्यादा उपयोगी होगा। अगले क्लास में इस प्रकार से मैंने इससे संबंधित जो टॉपिक थी, इंट्रोडक्शन परिचय की जो बातें थी, उसको मैंने स्पष्ट किया। अगले क्लास में इससे संबंधित जो चीज़ें हैं और आगे बात करूँगा। अब ये भी जो मैं चर्चा किया क्रेडिट बेस्ड इवैल्यूएशन की, यानी क्रेडिट आधारित मूल्यांकन की, उसके परिचय को मैंने बताया, जिसमें कि यूजीसी से संबंधित बातें थी और उसके बाद मैं हायर जो उच्च शिक्षण संस्थान उससे संबंधित ग्रेडिंग की बात की और ग्रेडिंग प्रणाली के जो दिशा निर्देश है जिससे कि सभी को डिग्री मिलती है उसके बारे में बात की है। तो ये चीज़ें स्पष्ट होती हैं कि ये उपयुक्त है, बट आवश्यकता इसमें चीज़ है कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो वेरिएशन है, उसको एक करने की आवश्यकता है पूरे देश में सभी विश्वविद्यालय में, ताकि ये और
परफेक्ट हो, रचनात्मक हो और सही व्यवस्था और सही सिस्टम से ये लागू हो सके, जिससे कि छात्रों को फायदा हो और स्ट्रेस, उनको दबाव जो है वो थोड़ा कम हो। तो मिलते हैं अगले क्लास में एक और वीडियो के साथ। बट लास्ट में जो अभी तक छात्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप यथाशीघ्र सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही ये अपलोड होगा आपको तुरंत उपलब्ध हो जाएगा। अगर आगे मिलते हैं एक और वीडियो अगले क्लास में एक और के साथ। धन्यवाद।